सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चक्र जहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बांतरण कहत त्वै सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। हमें अवगुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तिह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुर रामदास राखो सरणाई। डंडौत बंदन अनकबार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोठ महला पंजवा दो तुके। जो लो भाओ भावे हमाने तो लो मिलन दूराई। आने अपना करत विचारा तो लो बीच बिखाई। जो लो भाओ भावे हमाने तो लो मिलन दूराई। आने अपना करत विचारा तो लो बीच बिखाई। माधवे ऐसी देहो बुझाई सेवा साध गहो ऊट चरणा नह बिसरै मोहत चसाई। रहाव रे मन मुग्ध चेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई। प्राण पत त्याग आन तू रचया उर्जयो संग बैराई। सोग न व्यापै आप न थपै साधु संगत बुद्ध पाई। साकत का बकना एव जानो जैसे पवन चुलाही। कोट पराध असाध्य एह मान कहना कछु न जाई। जन नानक दीन सरन आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। कोट पराध असाध्य एह मान कहना कछु न जाई। जन नानक दीन शरण पयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मान जो गुरु खालसा साध संगत जी। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज उन्होंने दसे स्वरूप
ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਡਭਾਗੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਹਿ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹੈ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਪਰ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੱਥੇ ਦਾ ਭਾਗ ਉਜਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣੀ ਇਹ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਾਰ ਉਦੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਥੇ ਦਾ ਭਾਗ ਉਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂੜ, ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਭਾਗ ਉਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਦੋ ਤੁਕੇ। ਸੋਠ ਰਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੋ ਭਾਉ ਅਭਾਉ ਇਹ ਮਾਨੈ, ਤਉ ਲੋ ਮਿਲਣ ਦੂਰ ਆਈ। ਮਿਲਣ ਦੁਰਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜੋ ਲੋ ਭਾਉ ਅਭਾਉ ਇਹ ਮਾਨੈ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਈਰਖਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਿਲਾਪ ਕਠਨ। ਤੌਲੋ ਮਿਲਣ ਦੂਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਨ ਆਪਣਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਨ ਆਪਣਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤਵਲੋ ਬੀਜ ਵਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਮਿਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹ ਤੇ ਈਰਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਬਗਾਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰ ਤੇਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਧਵੇ ਐਸੀ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਈ, ਮਾਧਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਧਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਗਹੁ ਓਟ ਚਰਨਾ ਨਹਿ ਬਿਸਰੈ ਮੋਹ ਤੇ ਚਸਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਪੁਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੁੱਝ ਲਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਗਹੁ ਓਟ ਚਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਨਹਿ ਬਿਸਰੈ ਮੋਹਤ ਚਸਾਈ, ਇੱਕ ਚਸਾ ਇੱਕ ਮੋਹਤ, ਮੋਹਤ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੋਹਤ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਘੜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਚਸਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ ਚੰਚਲ ਚੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ ਇਹ ਚੰਚਲਤਾਈ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ? ਚਿੱਤ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਚੇਤਪਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ ਚੰਚਲ ਚਿੱਤ ਤੁਮ ਐਸੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੂਰਖਾ ਮਨਾ ਚੰਚਲਤਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਨਾ, ਰੱਬ ਵਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਤਿਆਗ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ ਚੰਚਲ ਚਿੱਤ ਤੁਮ ਐਸੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਤਿਆਗ ਆਣ ਤੂੰ ਰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਉਰਜਿਓ ਸੰਗ ਬੈਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾੜਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੰਟ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਧਰਮ ਰਾਜ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਕੁਝ? ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ ਚੰਚਲ ਚੇਤ ਤੁਮ ਐਸੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ ਅਚੇਤਤਾ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਚੰਚਲਤਾ 'ਚ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਤਿਆਗ ਆਣ ਤੂੰ ਰਚਿਓ, ਉਰਜਿਓ ਸੰਗ ਬੈਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਜਿਆ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ पूर्व की कमाई सो तो पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप तैने कछु न चलाई है।
दिल्ली के दिल वालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दीना। पटियाले की लूट में जगाधरी ना पाई है। बड़ी कमाल दे उन्होंने वचन लिखे है। कहते पूर्व की कमाई सो तो पश्चिम में बैठ खाई। जो पूर्वले कर्मा की कमाई सी तो इत्थे बैठ के खा रहे हैं। आगरे की खेप तैने कछू ना चलाई। कहते अगे दी फिर तेरे कोले केड़ी खेप हैगी, पिछला तो इत्थे खा लिया, पर अगे वास्ते की बीजिया वो तेरे पल्ले कुछ है। दिल्ली के दिल वालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दीनों। कहते तेरे दिल च जेड़े वस के बैठे ने ना, सारा सौदा इन्होंने तेरा आत्म वस्तु बिगाड़ दी। पटियाले की लूट में जगाधरी ना पाई है। जगाधरी का अर्थ होंदा जगत का आसरा अकाल पुरख वाहिगुरु। जो तेरे पेट विच चलदा पिया है, ये अगर तू कंट्रोल नहीं करेगा तो कभी भी जगत का आसरा अकाल पुरख वाहिगुरु तेनू नहीं मिलेगा। संग के संगौटी तो लाहौर ही लाहौर कहे। कहते जन्म वेले जो कुछ तेरे नाल आया सी, नेत्र, कन्ना च सुनन दी शक्ति, बोलन दा बल, शरीरक ताकत, ये कहते इन्हां दी तृप्ति नहीं हुंदी हुंदी। ये तो होर देखणगे होर देखणगे। कहते अखीं देखना रजियां बहु रंग तमाशे, भाई गुरदास जी ने लिखिया। संग के संगौटी तो लाहौर ही लाहौर कहें। त्याग वैरवाल चित अमृत सर लाइए। कहते वैर करने वाले छड़ दे, अमृत दे सरोवर नाम विच अपना चित लाएगा तां तेरा भला होवेगा। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित, तुम्हें ऐसी हृदय ना आई। प्राण पा त्याग आण तू रचिया उर्जो संग बैराई। कहते अकाल पुरख वाहिगुरू नूं छड्ड के होर किते रुचि लाई फिरदा। ये असल च तेरे वैरी ने जिहड़े तैनूं मिठे लगदे, तू अपना मन जिथे फसाया होया। सोग ना व्यापे आप ना थापे, साध संगत बुद्ध पाई। साध संगत विचों कहते ऐसी मत की प्राप्ति हुंदी। सोग ना व्यापे आप ना थापे। आप दा अर्थ हुंदा हंकार। कहते फिर हंकार नहीं जदों करेंगा संगत विचों ऐसी मत मिलेगी। सोग ना व्यापे फिर तेनों चिंता नहीं व्यापेगा। संगत करन करके तेरा हंकार निकलेगा। हंकार त्याग दिता फिर तेनों सोग नहीं व्यापेगा, चिंता नहीं व्यापेगी। साकत का बकना इव जानो जैसे पवन झुलाई। कहते मूर्खां दा साकतां दा बोलना इदां दा जिवें हवा दा बुला, कोई अर्थ नहीं हुंदा उन्हां दे बोलण दा। साकत का बकना इव जानो जैसे पवन चलाई। कहते एवें बोली जांदा भाई, आवा तवा बोलदा जिन्हों कहते जो मूँह च आया आखी जांदा। मूर्खां दा बोलना इदां दा ही हुंदा, क्योंकि मुੱਲ कोई नहीं हुंदा, कीमत नहीं हुंदी उन्हां दे बोल दी। कोट अपराध अशाद्य होए मन कहना कछू ना जाए। कहते करोड़ा अपराध उन्हां पापां दी मैल थले मन तेरा लुकिया पिया, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई जन्मां दा, क्योंकि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होवा स्याह। खनली धोती उजली ना होवे जे सो धोवण पाओ। कहते एक जन्म दा थोड़ा, कई जन्मां दे संस्कार। कोट अपराध अशाद्य होए मन कहना कछू ना जाई। कहते हुण की कहिए, करोड़ा अपराध वो संस्कार बन के तेरे मन ते चंबड़े पे ने। जन नानक दीन सरन आयो प्रभ। कहते असीं हुण दीन हो के महाराज तुहाडी शरण च आए। दीनता नाल सब लेखा रखो उठाई। महाराज सब लेखा खत्म कर दिओ कृपा करके, क्योंकि दीन बन के तुहाडी ओट ग्रहण कीती है। इस करके हुण तुसीं कृपा करो, ये सारा लेखा जोखा मुका दिओ जी। सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। कहते सब द्वारे सब आसरे छड्ड के तुहाडा आसरा ग्रहण कीता, हुण मेरी बांह फड़ी दी लाज रखियो। जन नानक दीन सरन आयो प्रभ, सब लेखा रखो उठाई। महाराज हुण दीनता धारण करके तुहाडी शरण च आए हैं, हुण सानू लेखा जोखा ना देना पवे, साडा लेखा कृपा करके खत्म कर दे। तो गुरु साहब जी साध संगत जी समर्थ ने
महाराज जी की मेहर की नज़र थले आ जाइए, फिर लेखे तो छुटकारा हो जाता। बहुत सारे इतिहासिक प्रमाण आपां ऐसे मिलणगे जिथे गुरु साहब जी ने सिखां ने बेनती की, महाराज जी ने उन्हों का लेखे तो छुटकारा किया। भाई कल्याणे ने मंडी के राजे ने पंजवें पातशाह जी की शरण च लिया सी। गुरु साहब जी ने सारा कर्मां का लेखा मुका दिता सी। भाई दान सिंह ने कलगीधर पातशाह अगे बेनती की सी, महाराज मेरा छुटकारा कराओ, मैनू लेखा जोखा ना देना पवे। तो महाराज जी ने सुते पे का सारा कुछ भुगता दिता सी। हैरान होकर आके पूछया तो महाराज ने आख्या तू आख्या सी, इस करके भाई तेरा ये मुका दिता, जो तू सुपने च वेख्या असल च तू भोगना सी, पर ये तेरा खत्म कर दिता। ये तेरी सेवा का तेन फल मिलिया। सब लेखा रखो उठाई, महाराज सारे तरह का लेखा कृपा करके खत्म कर दे। सोठ महला पंजवा। पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदे ही। कहंदे पुत्र, पुत्र दी घर वाली, अपनी इस्त्री, सज्जन मित्र, घर परिवार सारा, ये सब कहते गुरमुख असल च माया का संबंध हुंदा। पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदे ही। कहते संबंध सारे ये पूर्वले कर्म करके ये माया के संबंध सारे। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी के वचन ना, वो कहते प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने ही सुख सो जग बांधियो को काहू को नाही। कहते मन च सोच ला भी सब आपो अपने स्वार्थां दे संबंध करके है, उवें कोई किसी का सहाई अंतले समय ते हुंदा नहीं। सुखमय आन बहुत मिल बैठत रहत चाहू दिस घेरै। कहते सुख होवे ते घेरा घत के बैठण वाले बहुत मिल जाणगे। विपत परी सब ही संग छड्ड। कहते विपता पै जाए सब मुंह फेर लैणगे, सब साथ छड्ड देणगे, कोई ना आवत नहीं रहे। कहते कोई भी नेड़े नहीं आवेगा फिर, क्योंकि संबंध ही इसे तरह का। पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदे ही। कहते सब माया के संस्कारां दे पूर्वले संजोगां दे संबंध है। महाराज के बचनों कहते ने मन मुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदियां ही भज जान कदे न पायन बंद। जिचर पहनन खावने तिचर रखन गंढ, जित दिन किश न हो गई तित दिन बोलन गंद। कहते मन मुखा की दोस्ती जिहड़ा प्रेम है ये स्वार्थ करके हुंदा। जदों तक उन्हां दा स्वार्थ पूरा होवेगा उदों तक उन्हां दी मित्रता। जिचर पहनन खावने, जदों तक खाण लई पहनण लई मिलदा रहेगा उदों तक मित्रता। जित दिन किश ना हो गई तित दिन बोलन गंद। कहंदे वो जिहड़े तेरियां सिफतां करदे सी, जिस दिन उन्हां नूं पता लग गया हुण कुछ नहीं मिलना इहदे कोलों, ओही तेरी मुड़ के निंदा करनगे। क्योंकि ये संबंध इसे तरह का ही है। पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदे ही। अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असने ही। कहते अंत नूं किसी ने तेरे नाल खड़े नहीं होना। जो अंतला समा आया कोई भी साथ नहीं देवेगा। अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या स्नेह। कहते मिथ्या स्नेह जिहड़ा तेरा ना मिथ्या मिथ्या कहते झूठे। कहते यह प्रेम स्वार्थ दा मिथ्या प्रेम है। रे नर काहे पपोरो देही। कहते कादे लिए इस देह का मान करी जाना, इसे का मान करना, यदि हंगता करनी, इनू सांभी जाना। होए आमरो गृह में बैठा, रे नर काहे पपोर हो देही। उड़ जाएगो धूं बादरो। कहते ये तो धूं के बदल की तरह उड़ जाएगा एक दिन। इन्हें सदा साथ नहीं देना होंगे। जो तुहानू उपजा संग ही सो भी संग ना होया। महाराज के बचन उड़ जाएगो धूं बादरो। कहते धूं की तरह बदल की तरह, धूं के बदल की तरह इन्हें साथ छड्ड देना, उड़ जाएगा। माड़ा जिहा हवा का बुला आवे तो धूं के बदल निकल जाते होंगे।
एक भाजो राम स्नेही। इस करके कहते एक राम का भजन कर जिहड़ा तेरा अपना, बाकी सब संबंध धुएं दे बदल की तरह। तेरे शरीर का भी तेरे नाल संबंध सिर्फ इन्ना ही है, पता नहीं किहड़े वेले क्या परवासा इस भांडे का इतन लागे ठनका। कबीर साहब कहते कच्चे भांडे का की हुंदा, थोड़ी जी एम करके ठोकर लगी तो गया, उड़ जाएगा धूम बादरो एक भाजो राम सुनेही। कहते असल च तेरा जिहड़ा अपना ना, तेरे नाल पक्का स्नेह करने वाला वो परमेश्वर का नाम है, वो परमेश्वर का भजन करया कर। और हाउ विश्राम दे के कृपा कर दे, तीन संज्ञा कर दे ही कीनी। कहते माया के तिना गुणों के अधीन है तेरा शरीर, ये बनया भी उसे तो ही है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तो, इन्हां गुणों के अधीन ही चलता फिर है। तीन संज्ञा कर दे ही कीनी, जल कूकर पसमेही। कहते जिस दिन छुट गया जां जल च रख देणगे जल प्रवाह, जां पसमेही साड़ देणगे भस्म हो जू, जां कूकर फिर उजाड़ च पिया होगा कुत्ते खा जाएंगे। बस जां जल प्रवाह, जां स्वाह दी मुठ, जां जानवर खाणगे। तू इसे दा हंकार करी जाना। तीन संज्ञा कर दे ही कीनी, ते दूजे अर्थ भी कर दे विद्वान। जल कूकर भस्मेही, जल पानी, कू धरती, भस्मेही भस्म अग। कहते इन्हां तत्तां करके यह तेरे शरीर की बनतर है। ये तत्त पता नहीं कि कदों तत्तां च मिल जाणगे, तू इसे दा हंकार करी जाना। होए आमरो गृह मैं बैठा। कहते तू तो हंकारी हो के बैठा अपने शरीर च। आमर हुंदा जिहड़ा आखे भी मैं अमर है, मैं किते जाना ही नहीं। इन्ना हंकारी हो के कहते मन तेरा बैठा इस शरीर च। होए आमरो गृह मैं बैठा, करण कारण विसरोही। जिहड़ा सारे कारजां नूं करन वाला अकाल पुरख वाहिगुरू विसर गया, वो भुल गया। इन्ना हंकार कोई देह दी हंगता, पदार्थां दी, अपने बल दी, अपनी चितराई दी। पर कहते असल च जिहड़ा सारे कारजां नूं करन वाला अकाल पुरख वाहिगुरू वो विसरिया पिया, वो भुला तैनूं। करण कारण विसरोही, अनक भात कर मणीए साजे। कहते अकाल पुरख वाहिगुरू ने शरीरां दे मणके साजे। ये परमात्मा ने ऐसी शरीरां दी साजना की, समझ लो ये मणके है। काचा ताग परोही, पर कहते कच्चे धागे च परोए ने, पता नहीं टुट किहड़े वेले जाना हुंदा, क्योंकि मणकियां दा आसरा सिर्फ धागा ही हुंदा है। धागा टुट जावे तो मणके खिलर जाते उस वेले। कहते ये शरीरां दे मणके देखो पंजां तत्तां तो तिन्नां गुणां दे अधीन अकाल पुरख वाहिगुरू ने साजे ने, पर इन्हां नूं परोया कच्चे धागे च, सवासां दी कच्ची डोर विच परोए ने सारे शरीरां दे मणके। इन्नी कच्ची है, एक भी सवास बाहर गया मुड़ के वापस ना आवे ते खेड खत्म। त्रै सत वाई अंगल उदू। कहते ये बस एक सवास की लंबाई इन्नी की विधान कहते भी एक बार बाहर नूं निकल गया दोबारा आ जाए तो जिंदगी है, ना आवे तो खत्म। इन्ना कच्चा धागा है। इसे महाराज साहब जी ने आख्या आम आदमी है एकदम ही मोहलत मोहत ना जान। क्योंकि महाराज ने पूछा कहते भाई मरदाना जी नूं भी जिंदगी कित्थों तक समझदा, तो कहता महाराज आ सवेर का सूरज चढ़ता वेख्या, पता नहीं शाम का वेखना हुंदा कि नहीं, बहुती लंबी नहीं मैं समझदा। तो महाराज जी ने आख्या अच्छा ठीक। भाई बाला जी ने पूछा भी तुसी किन्नी क मनदे जिंदगी की जिहड़ी इहदी अवधि है। वो कहते जी ये तो भाई मरदाना जी तो कहते सवेर का सूरज देख लिया चढ़दा, शाम का पता नहीं देखना कि नहीं। मैं सोचदा जिहड़ी ग्राही मूँह च पाई है पता नहीं अंदर जानी कि नहीं। इन्नी की गल है, पता नहीं, मतलब जा भी सकती पर पता नहीं जानी कि नहीं। तो महाराज कहते नहीं ये तो बड़ा लंबा काम है भाई। असल में इसकी बुनियाद इन्नी कि हम आदमी हाँ एक दमी। आदमी दम आवे ते आदमी, नहीं तो खत्म। कहते एक एक दम का करके गल चलती पई। एक दम तो बाद दूसरे दम की कोई गारंटी नहीं होंगी अपने कोल। आई जाते ने तो भावें 100 साल चले, पर इन्ना कच्चा धागा है अगले का पता नहीं भी जेड़ा लै लिया तो अगला आना कि नहीं। हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मोहत ना जाना।
नानक बनवै तिस सिरे वो जाके जी पुराना। कहते ये तो आदमी एक दम दे ही है, बस कोई मोहलत नहीं होंदी इहदी। इसलिए वो जिहड़ा सारे जी का प्राणा का आसरा अकाल पुरख वाहिगुरू कहते उन्होंने चेते करो भाई, जिस दम भी वो चेते आवे वो सफला ही। इसलिए चौथे पातशाह ने हार जापद्या खिर ढिलना कीजे मेरी जिंदड़ी है, मत के जप ऐसा हो आवे कि ना आवे राम। कहते हरि नूं जापद्या एक खिण की भी ढिल नहीं करनी चाहिए। पता नहीं होंदा भी ये कच्चे धागे ने किहड़े वेले टुट के मणका खिलर जाना, श्वास आउणा कि नहीं आउणा, कहते इस गल की गारंटी नहीं होंदी। तीन संज्ञा कर देह कीनी जल कूकर पसमेही। कहते तिना गुणा के अधीन देह चल रही है, इसे तो बनी है। खत्म हो जाए तो जां जल च प्रवाह करनगे, जां पसमेही भस्म होवेगी, जां कूकर जानवर आदि खा जाएंगे। होए आमरो गृह में बैठा करण कारण बसरोही अनक भात कर मणीए साजे। कहते किन्ने तरह तरह के मणके साजे परमात्मा ने। काचा ताग परोही, पर इन्होंने परोया कच्चे धागे च। टूट जाएगो सूत वापरे। कहते एक दिन सूत टुट जाना तो तू विचारा वेंदा ही रह जाएगा। वापरे का अर्थ होंदा विचारा, विचारे का अर्थ होंदा नमाना नताना। कहते तेरे वास दी फिर कोई गल नहीं चलनी, इस कच्चे धागे ने टुटना ही टुटना। टूट जाएगो सूत वापरे फिर पाछा पछतोही। कहते फिर पिछे पछतावेंगा, बस पछतावे तो बिना फिर कुछ नहीं रह जाएगा। फिर महाराज की करना चाहिए जी? ते हजूर दे भजन जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस ध्यावो दिन रहने। कहते जिस अकाल पुरख ने तेरी सिरजना की फिर तेरे शरीर नूं सवारिया, उस परमेश्वर नूं दिने रात ध्या। यही करना चाहिए तैं। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे, जिन तू सिरज सवार सिंगारिया, गर्भ अगण में जिने उबारिया। कहते जिन्हें तेरे सिरजना करके फिर तेरी संगारिया इस शरीर नूं देई। ये अकाल पुरख वाहिगुरू ने शंगार साध संगत जी करके ही भेजिया, क्योंकि उन्हें देखो हथां दे उंगलां जोड़ बना दिते शरीर दे। फिर उन्हें अखां दे उपर आह पलकां ला दित्तियां, नक दी गुड़ी बना दिती। फिर उन्हें शरीर उपर सोहना चमड़ी का लेपन कर दिता। काच कोट अंगर चद तो अंग लेपन रक्त चरमन है पंजवें पातशाह कहते। कहते सब हड्डियां मेजों ने सुंदर चमड़ी ना ढक दिते आ, शंगार के साज के शरीर नूं फिर शंगार के फिर भेजिया। जिन तू साज सवार सिंगारिया। कहते कली साजना नहीं की, साजना करके फिर इहदा शंगार भी किया। उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं जप, उसका भजन कर। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे। कहते जिसने तेरी सिरजना करके ते फिर तेन सवारिया होया। तिस ध्यावो दिन रहने ही। कहते दिने रात उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ध्याओ जिसने कमाल की सिरजना की। फिर इस शरीर नूं शंगारिया। जे ना शंगारिया किते किते कर्मां दा करके संस्कारां करके आपां ऐसा देखते हैं भाई कोई ना कोई साध संगत जी ऊणता ही हुंदी शरीर च। बुल्लां च रह जावे ते लोग कहणगे भी इह खंडा होर तरह लगदा। नक च रह जावे तो उहनूं महाराज ने ते कबीर साहब ने नकटी आखिया। पर जे सारे अंग प्रतंग ठीक ने, इहदा अर्थ है परमात्मा ने साज के सवारिया होया पाई। ते फिर उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं कहंदे तू जप। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस ध्यावो दिन रहने ही। जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गही ही। कहंदे महाराज ने हुण मेरे ते कृपा की, इस गल की सोझी आ गई, मैं परमात्मा की ओट ग्रहण कर ली। ये सोझी मैनूं बख्श दिती परमात्मा ने, इस करके हुण परमात्मा की ओट ग्रहण की। जन नानक प्रभ कृपा धारी। कहंदे कृपा की तां मैनूं इस गल की सोझी आई, मैं सतगुरु ओट गए। कहंदे गहे ही हुंदा फड़ लैणी। कहंदे हुण असीं सतगुरु की ओट पकड़ लई पाई। सोठ महला पंजवा। गुर पूरा भेटियो वड भागी मन है पया प्रगासा। वड्डे भागां करके कहंदे पूरे गुरु नाल मिलाप हुंदा। ते जिस वेले पूरे गुरु साहब नाल मिलाप होया, उन्होंने मन च प्रकाश कर दिता।
मन है भया प्रगासा, जिन्हों कबीर साहब कहते ना, आंधी पाछे जो जल बरखा तिह तेरा जल भीना, कहो कबीर मन भया प्रगासा, उदय भान जब चीना। भान सूरज नूं कहंदे, कहंदे सूरज वर्गा प्रकाश अंदर कर दिता हुण मेरे गुरु ने। बाहर तो हैगा ही सूरज का प्रकाश, पर बाहरले प्रकाश आपां नूं अपना अंदर नहीं दिखाई दिंदा। गुरु अंगद देव महाराज जी ने आख्या, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े, 1000 रेते चानण होंदियां गुरबिन कोर आंदा। जे 100 चंद्रमा ते 1000 सूरज चढ़ जाण तां भी गुरु तो बिना अंदर घुप हनेरा ही रहना। अंदर ज्ञान का प्रकाश सिर्फ गुरु साहब जी की मेहर करके हुंदा। फिर अपने अंदर दिसदा भी आत्म वस्तु कित्थे है, वकारां दी ढेरी कित्थे है, मैं की इकट्ठा करी बैठा, की चंगा की माड़ा, हुण तक मेरे कोल की सी। ये ज्ञान दे प्रकाश करके दिसना आंदा, क्योंकि बिना प्रकाश तो कुछ दिखाई नहीं दिंदा। गुरपूरा भेटियो वडभागी, मन है पाया प्रगासा। कहते वड्डे भागां करके पूरे गुरु साहब नाल मिलाप होया, इस करके हुण मन च प्रकाश हो गया, चानण हो गया। हुण चानण च दिसण लग पैंदा ना, फिर मन नूं पता लगन लग पैंदा भी हुण तक दे मेरे कोल जो कर्म हिसाब किताब है, उन्हां च चंगियाई किन्नी ते बुराई किन्नी दिसण लग पैंदा। नहीं तो दूसरे का भावें आप जो मर्जी देख लीए, अपने आप को बहुत घट लोग देखते भी मैं की कीता हुण तक। तीसरे पातशाह कहते अपने शरीर में भी कदे पुछ लिया करो, ये शरीरा मेरे इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। कहते कदे अपने आप को पुछया, लोगों का ही ख्याल रखी गए सारी उम्र, वो की करदा वो की करदा, अपने आप को वेख लो भी मैं की कीता। जिस परमात्मा ने तेरी रचना रची, तीसरे पातशाह कहते कदी मन च वसाया उन्होंने, तू ही वेख ना भी जदों दा तू संसार ते आया तू उदों दा की कीता। पर यह उदों पता लगता, अपना आप उदों दिसना शुरू होंदा जदों ज्ञान का प्रकाश अंदर हो। ये ज्ञान आ जाए भाई दूसरे दे अवगुण देखण नालों चंगी गल तू अपने देख, तेरे च की है। तू बाकी छड्ड सारी गल। आप कबीर साहब कहते हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, पलत नानक तारे सोयो। कहते उही तरेगा जिहड़ा जो ये समझ आ जाए मैं नहीं चंगा गुरमुखो, बाकी तो चंगे ही है सारे। पर काम ये उल्ट चल रहा होंदा, कहते सिर्फ मैं ही चंगा, बाकी तो उदा ही तुरी फिरदी सारी दुनिया। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोई। कबीर साहब कहते एक बार झाती मार के वेखो, तेन पता लग जाएगा भी असल में मेरे तो सारे भले ही है, मैं ही हाँ सारिਆਂ तो बुरा। असल इस तरह की सुरती बिरती चाहिए सी। पर जे गुरु साहब जी की कृपा नाल अंदर ज्ञान होवे, फिर बंदा अपने आप को देखता, अपने वाले झाती मारदा भी मैं की है, हुण तक मैं की कीता भाई। गुरपूरा भेटियो वडभागी, मन है भया प्रगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का प्रवासा। कहते सानू इन्ना भरोसा अपने मालिक ते, कोई भी होर साडे गुरु साहब दे बराबर पुज नहीं सकता, क्योंकि गुरपूरा पूरे का विशेषण आया भी पूरे गुरु साहब ने साडे, मैनू पूरा भरोसा भी उन्हां वर्गा होर कोई नहीं हैगा। कोई ना पहुंचन हारा दूजा, कोई उन्हां दे बराबर नहीं पहुंच सकता। अपने सतगुरु कै बलिहार है, कहते इसलिए असीं अपने गुरु तो सदके जाने, अपने गुरु तो बलिहार जाने। बलिहार का अर्थ असल च अखरी अर्थ होंदा बल हार, जिथे अपनी बुद्धि का बल आपां हार देने कि नहीं महाराज मेरी अकल नहीं, जो तुसीं कहंदे मैं वो मानदा, अपनी बुद्धि का बल मैं इत्थे हार दिता। उवें इहदे अर्थ कीते जांदे कुर्बान जाना। कहते असीं अपने गुरु तो कुर्बान जाने, वारी जाने। वाकई अपना आप वार दिंदे सी सिख। महाराज नूं आख्या जी तुसीं निकलो चमकौर की गढ़ी चों, असीं लड़ांगे। भाई पारो ने तीसरे पातशाह नूं आख्या महाराज मैं तां सिख ही बनना, मैनूं अपने चरनां 'च रखो, तुसीं ये वड्डी वडियाई जिहड़ी देनी चाहुंदे, मैं अपने आप नूं इहदे योग नहीं समझदा। अपने सतगुरु कै बलिहार है, आग्या सुख पाशा सुख सहजा।
घर आनंद हमारा। कहते फिर जदों गुरु साहब ने कृपा की इस लोक च भी सुख, परलोक विच भी सुख ते हिरदे विच भी आनंद गुरु साहब ने बख्श दिता। अगे पिछे सब पासे सुख ही है, आगे सुख पाछे सुख सहजा। घर आनंद हमारा, कहते हुण साडे घर साडे हिरदे च आनंद ही आनंद है। पर उदों गुरपूरा भेटिओ वडभागे, जदों वड्डे भागां करके पूरे गुरु साहब नाल मिलाप होया। और हब विश्राम दे के गुरु अर्जन देव महाराज कृपा करदे, अंतरजामी करने हारा सोई खसम हमारा। वो सारे कारजां नूं करन वाला अंतरजामी वो है साडा मालिक, जिहड़ा सारी दिल दी हालत जानदा। अंतरजामी है, सारे कारजां नूं करन दी जिस विच समर्था। निरभओ भये गुर चरणी लागे, कहंदे जदों ते गुरु चरणी लगे हैं सारे डर खत्म हो गए। क्योंकि अपने साहिब का प्रवासा, सानू अपने मालिक उत्ते भरोसा है। इस करके ना हुण जमां दा डर, ना 84 दा डर, ना नरकां दा डर, ना कोई दुनियावी तौर ते कोई डर नहीं। कहंदे उस वेले दे निरभव हो गए जदों दा गुरु साहब जी दे चरनी लगे। क्योंकि ये पता हुंदा जिथे भी मैनू महाराज रखणगे अपनी शरण च ही रखणगे, और उन्हां दी शरण विच सदैवी सुख ही। यही गल उन्हें आखी सी साध संगत जी महेशे जोगी नूं, भाई तिलकू ने गढ़ शंकर वाले ने। 2 हफ्ते पहला ओदी याद मनाई गई। सिर्फ इसे ही आख्या सी, क्यों? क्योंकि वह करामाती बंदा सी जोगी। उन्हें लोगों को आख्या भी जेड़ा मेरे कोल आवेगा वो स्वर्गा नहीं जाएगा भाई, मेरी गारंटी है। बड़ी दुनिया टुट के पै गई, भीड़ इकट्ठी करने वास्ते कोई ना कोई तो शोशा छड्डना ही हुंदा इन्हां लोकां ने। उन्हें आख्या जेड़े मेरे को आउणगे मैं गारंटी करदा सब स्वर्गां नूं जाणगे। गई सारी दुनिया। फिर हंकार ना पुछदा, कहंदा भी आ गए सारे? किसी ने आख्या नहीं, एक बंदा नहीं आया, है तो इत्थे पिंड च ही है पर वो नहीं आया। कहंदे वो कौन है? कहंदे भाई तिलका। कहंदे जाओ उन्होंने भी लियाओ। फिर गल बनती भी वो भी आवे, उन्होंने लैन गए। कहंदा मैं नहीं जाना। जाके आख्या भी वो नहीं जी आउंदा। तो कहंदे भी क्यों नहीं आउंदा? कहंदे वो आंदा मैं जाना नहीं, मैनू नहीं चाहिए स्वर्ग। आप आया मुड़ के चल के, वो आप आया भी मैं जाके भाई तिलके का हंकार तोड़दा। हंकारी तो आप सी। आण के कहंदा भी तू क्यों नहीं आउंदा? बई दरवाजा ही नहीं खोलिया भाई तिलकू जी ने। बाहरों डोर करदा ओदी, तो अंदरों भाई तिलकू जी पुछदे कौन? कहंदा मैं महेशा आप आया तेरे को, दरवाजा खोलो। कहंदा नहीं मैं नहीं खोलना, मैं मत्थे नहीं लगना तेरे। वो कहंदा मेरे मत्थे लगन दा फल है, तू स्वर्गां च जावेगा। भाई तिलके जी ने आख्या मैनूं स्वर्ग चाहिए ही नहीं, ये तो जिन्हां नूं चाहिए जेड़े लालची इस गल दे वो जाण ना तेरे वाल, मैनूं नहीं लोड़। वो कहंदे क्यों तू कित्थे जाना, तैनूं नहीं चाहिए? वो कहंदा मैनूं जिथे पंजवें पातशाह रखणगे उत्थे जावांगा, और उत्थे ही मेरे वास्ते सचखंड है। मैनूं तेरे दिते स्वर्ग की मैनूं लोड़ ही नहीं। हम काहू की कान न करते अपने गुर प्रसादे, क्या नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दो रादे। वो कहंदे की विचारा स्वर्ग ते की नरक है? ना मैनूं नरकां दा डर है, ना मैनूं स्वर्गां दा लालच है। क्यों? क्योंकि मैनूं अपने गुरु ते भरोसा। इसलिए असीं दोवें छड्ड दित्ते, किसी दी भी कान कनौट नहीं हैगी। निरभओ भये, कहंदे जदों तो गुरु साहब दे पल्ले लगे हैं सारे डर ही खत्म हो गए, निरभओ हो गए। उदों ते कोई डर नहीं रह गया, क्योंकि वो आप निरभओ जपै सगल भौ मिटै। उसनूं जपन करके फिर कहंदे इस करके कोई भय बाकी रह नहीं गया, कोई डर नहीं रह गया। निरभओ भये गुर चरणी लागे, कराम नाम आधारा। कहंदे एक परमात्मा के नाम का आसरा लिया, इस करके सारे डर खत्म हो गए। तो वाकई जिन्होंने साध संगत जी परमात्मा के नाम का आसरा हुंदा, महाराज वे कहंदे डड्डा डर उपजे डर जाई, तां डर मैं डर रहा समाई, जो डर डरे तो फिर डर लग गए, निडार होए डर उर होए पग। बचन महाराज दे। डड्डा डर उपजे डर जाई, कहते जदों हिरदे च रब का डर पैदा हो गया बाकी खत्म हो जाएंगे सारे डर, फिर किसी डर तो डरन की लोड़ नहीं रह जाती। डड्डा डर उपजे डर जाई, तां डर मैं डर रहा समाई। कहते सारे डर उस डर दे विच ही समा जाएंगे, मुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो डर डरे तो फिर डर लग गया,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਪਿਓ, ਇਹ ਡਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਚੰਬੜ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਨਿਡਰ ਹੋਏ ਡਰ ਉਰ ਹੋਏ ਪੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਚ ਰੱਖ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਰ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਫਲੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਫਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਅਨੇਕਾਂ ਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 7 ਡਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈ ਪਰਲੋਕ ਭੈ, ਜਨਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹਿਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਨ ਰੱਖਿਆ ਅਰ ਗੁਪਤ ਭੈ, ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਭੈ ਸਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਡਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਤਾਣੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜੀਵ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਤਾਣਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ। ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਅੰਨ ਰੱਖਿਆ ਗੁਪਤ ਭੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਪਤ ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਬਿਪਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਬਿਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। 1-1.5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਗੁਪਤ ਭੈ, ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਭੈ ਸਾਤ। ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਕਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ।
उस दिन भी आप विचार की सी, जिन्हां दे प्रेम का वार-वार जिक्र भाई गुरदास जी करते जां महाराज जी ने किया, ज्यों मछली बिन पाणिया क्यों जीवन पावे, बूंद होना चातर को क्यों कर तड़पतावे। ये एक अंगी प्रेम है, सिर्फ मच्छी पानी ना प्रेम करती, पानी कदी मच्छी ना प्रेम नहीं करता। भाई गुरदास जी कहते ने चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले। वो कहते देखो किवें एक तार चकोर देखती रहिंदी, इन्नी प्रीत है चकोर दी चंद्रमा ना, पर चंद्रमा थोड़ा चकोर ना प्रीत करता, वो नहीं करता। सिर्फ एक गुरु घर है जिथे आपां थोड़ा भी महाराज ना प्रेम करांगे, कई गुणा वध के महाराज साडे ना प्रेम करनगे। चरण शरण गुर एक पैंडा चाहे जाए चल, सतगुर कोट पैंडा अगे होए लेत। सिर्फ एक गल भाई जोगा कहंदा, महाराज मैं तुहाडे जोगा, गुरु साहब कहंदे फिर मैं तेरे जोगा, परख नहीं किते, तेरे जोगे ही है, तेरे नाल ही रवांगे सदा। क्योंकि वो अपनी प्रीत नूं पालण दी समर्थ ने। जे कोई महाराज नाल प्रेम करदा तां गुरु साहब अग्गों कई गुणा वध के प्रेम करदे। जे भाई विधि चंद दी 6वें पातशाह च शरदा तां ओह गल ना ला के कहंदे विधि चंद शीना गुरु का सीना। बाबे सुंदर नूं कहंदे विधि चंद मेरा रूप है, इहदे दर्शन करो ते मेरे दर्शनां दा फल मिलेगा। इन्ना मान अपने सिख नूं गुरु साहब दिंदे आ, जे सिख महाराज नाल प्रेम करे ते, नहीं तो बाकी जिहड़े जीव प्रेम करदे सिर्फ एक पासे दा प्रेम है। पर वो कहते हैं अपनी प्रीत प्यारा कंठ लगाए अपने जन राखे, अपने सेवकों को अपने गल ना ला के रखदा। पर ये परमात्मा का महाराज का सुभाव बिरद इको ही है, वो अपनी प्रीत नूं पालण दे समर्थ ने। जे कोई प्रेम करदा, किन्नी विपता च फसिया होया जे प्रेम वाला, तो हाथ दे के रख लैणगे महाराज, हाथ दे के, क्योंकि वो पालते अपनी प्रीत। जे प्रेम करने वाला भी डुब गया तो फिर दुनिया ते प्रेम करेगा कौन। महाराज कहते जिन प्रेम की होते नहीं प्राप्त पायो, जिन्हें प्रेम किया उन्हें परमात्मा ही प्राप्त कर लिया। जे प्रेम करने वाला भी विपता च प्यार होगा फिर प्रेम कौन करे। इसलिए कहते वो अपनी प्रीत नूं पालदे महाराज, वापस प्रेम करनगे कई गुणा। उस वेले महाराज का हाजिर होना, अकाल पुरख का वाहिगुरु का बहुत ज्यादा अपने को प्रमाण ऐसे मिल जाएंगे, जिथे प्रेम करने वालियां दी नूं जदों लोड़ पई परमात्मा मौके ते हाजिर होया, उस वेले होया। भाई गुरदास जी कहते प्रेम भगत जय देव कर, गीत गोविंद साई धुन गावै। फिर वो कहते ने लीला चलत वखाण दा अंतरजामी ठाकुर भावै, अखर एक ना आवड़े बन पुस्तक संध्या कर आवे, गुणी निधान कर जाए कै। कहते अकाल पुरख वाहिगुरु नूं पाया ते भगत जयदेव जी दे स्वरूप च उस वेले जाके उहदी थां ते उहदा कारज कर आया जिथे लोड़ पई सी। अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे। इस तरीके नाल कहंदे वो अकाल पुरख वाहिगुरु गुरमुखो अपनी प्रीत पालन नूं समर्थ है। ते गुरु साहब भी अपने नाल प्रेम करने वालियां नूं कई गुणा वध प्रेम करके अपने गल नाल ला के रखदे। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रस। कहंदे महाराज दी वड्डी तो वड्डी वडियाई है गुरमुखो, उन्हां दे पल्ले लगन करके उन्हां दा लड़ पकड़न करके सारे कारज रास आ जांदे। नानक कहो गुर पूरा भेटो सगले दुख बनासे। कहंदे पूरा गुरु मिलिया सारे दुख ही नाश हो गए। ये पूरे गुरु साहब जी की साध संगत जी वडियाई है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने कथन किए। सो गुरु साहब जी कृपा करन, महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में अपना प्रेम बने। ये सच्चे पातशाह जी के चरणों च अरजोई है। भुलां चुकां दी खिमा, लिखा कते न छुटिया खिन खिन भूलनहार, बख्शनहार बख्श लै नानक पार उतार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।